اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انطقنی بالهدى وعلمنی التقوى. دیکھیں الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم تھوڑا سا قرآن کو پڑھنے کے لیے یہاں کے اوپر کیا چیز قرآن کو پڑھنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں سے بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ درس ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو آپ لوگ کرسی لے لیجیے, مثلا نہیں چلو کرسی بیٹھ سکتے ہیں اور ہاں نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کو پڑھنا آتا ہے. دیکھیے ہم نے اس کو پہلے بتایا کہ قرآن پڑھنا اور ہے اور صحیح پڑھنا اور ہے. ہم یہاں پہ روزانہ قرآن خوانی ہوتی ہے ہمارے پاس, اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں. بعض لوگ جلدی پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں جبکہ پڑھ سکتے ہیں. بعض لوگ احتیاط سے نہ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں, تو غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اور قرآن میں جہاں تک ہو سکے غلطی, اس لیے کہ قرآن کا سب سے بڑا مسئلہ تحریف ہے. تحریف مطلب یہ کبھی لفظی تحریف, کبھی معنوی تحریف. بعض اوقات کہیں ٹھہرنے کی وجہ سے تحریف ہو جاتی ہے. اس کا میں ابھی بتا دوں آپ کو. مثلا دیکھیں اردو میں بہت مشہور جملہ ہے, کیا ہے؟ روکو مت جانے دو, ٹھیک ہے نا. کیا کرتے ہیں, اگر آپ کاما یہاں لگایا روکو مت, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ مطلب جانے دو والی بات ہے. اگر کاما یہاں کر دیا روکو, کیا ہو جائے گا؟ نہیں روکے, بالکل معنی کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے. تو قرآن مجید میں رکنے سے معنی بدل جاتے ہیں, زیر زبر کے ادھر ادھر ہونے سے, ٹھیک ہے نا. جیسے مثلا اگر ہمیں لکھا ہے عزمتہو, ہم بتائیں اس کو ہم نے شہر عزمتہو. اگر عزمتہو معنی کیا؟ عزمتہو یعنی اس مہینے کو تو نے عظمت دی ہے. اگر کیا ہو جائے عزم تو ہو جائے, کیا ہو جائے گا؟ اس مہینے کو میں نے عظمت دی ہے. اتنا معنی بدل جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ہم خدا سے جدا ہو جاتا ہے, خدا جدا. صحیح, وہ تو نقطہ بولی جو گئی. ایک لفظ اگر ہم نے زبر کو پیش کر دیا تو کام خدا کا تھا, آپ نے ذمہ لیا. تو نے عظمت دی اور کہاں میں نے عظمت دی. لہٰذا قرآن کو ہمیشہ کیا کرنا اور صحیح پڑھنا, قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے. اب جو ہماری کلاس ہونے جا رہی ہے یہ ایک سسٹم ہے سب کے پاس. تو اگر آپ پاس جس پاس نہیں ہو لے لے لیجیے, بک آپ نے فری کی ہے, اور اس کی پی ڈی ایف بھی ہے. اگر آپ کو بھی چاہیں گے تو ہم آپ کو پی ڈی ایف بھی بھیج دیں گے, مسئلہ نہیں ہے. قرآن کو پڑھانے کے لیے بہت, دیکھیے دنیا اب گلوبلائزیشن زمانہ ہے, اب بہت ٹائم کسی میں اتنا نہیں ہے. بالخصوص وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں اولڈ ایج ہیں, جو بڑے ہیں بس, تو کم ٹائم میں قرآن پڑھنا. ہمارے اساتذہ نے واقعی محنت کی, ہم کو انہوں نے ہینڈ دیا بھائی, اور اب تک کم سے کم 8 سے 10 ہزار کتاب چھپ چکی ہے. اور 70+ کے لوگوں نے جن کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, انہوں نے قرآن پڑھنا اس بک سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, اس میں کیا ہے روش, جو کہتے ہیں روش, طریقہ, ٹرک جسے کہتے ہیں, وہ ٹرک آپ کو بتائیں گے ہم کہ آپ کو صحیح کیسے پڑھنا ہے, ٹھیک. دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کو پڑھانا چاہیں تو شارٹ ٹائم میں کسی کو کس طرح سے آپ پڑھا سکتے ہیں, ٹھیک. اس بک کے ذریعے سے بہت آسانی ہے. کسی بھی لینگویج پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے الفابیٹ ہے, ٹھیک. الف با تا تا جی ہاں جی ہاں, الف با تا سا جیم ہا خا, دال زال را زا سین شین صاد, ضاد طا ظا عین غین فا, قاف کاف لام میم نون واو ہا یا, ٹھیک ہے. یہ کل 28 حروف ہیں. ایک لائن میں آپ کو 7 حروف لکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ اگر آپ کہیں گے ادروائز میں آپ کو چارٹ کے اوپر ایسا اچھا لکھ کے دے دوں گا. ہم جب چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں, بچے واقعی ایک جگہ ہم گئے تھے, تو وہاں مدرسہ ہے, تو گئے مذہب میں, تو میں نے بچوں کو پڑھایا. 4-5 سال بعد پھر کلاس میں جانا ہوا, تو میں نے کہا علی بس سناؤ. تو جیسے میں نے 5 سال پہلے پڑھایا تھا, نے بچے سنا دیا. بچے جو ہوتے ہیں, کیا ہوا, ہم نے اس کو
रैम से बनाया, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद ضاد طا ظا عين غين فا قاف काफ लाम मीम नून वाव हा या, ये काफी आएगा। ठीक, बच्चों क्या हो गया, रिदम में आ गया। रिदम में आ गया। तो बड़ी ये नहीं आती बनाना नहीं, वो उर्दू अरबी में छोटी बड़ी है नहीं, अरबी में एक ही या है, आप छोटी कर बड़ी कर लीजिए, ऐसा समझा। अच्छा पा भी नहीं है उसमें, नहीं, पे। और अरबी में इनको 28 हरूफ हैं, गाफ बम को बम बोलते हैं गाफ चे पे और जे, ये फारसी में इजाफी होते हैं। कितने हो गए, 29 30 31 32। दाल दाल टे रे, ये उर्दू में इजाफी होते हैं। ठीक है, कितने हो गए 35। तो ये अरबी के हैं, ये इजाफा करिए फारसी के हैं, और ये उर्दू के। सबसे पहला जो बेस है वो क्या है, वो हरूफ को पहचानना है। आप पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 3 के ऊपर सबसे पहले क्या है, हमारे पास उर्दू के अल्फ़ाबेट और अरबी के अल्फ़ाबेट, उर्दू फारसी का अलग, अरबी का अलग है। उर्दू में क्या पढ़ते हैं, अलिफ बे पे ते से करते हैं। अरबी क्या है, अरबी में अलिफ बा ता सा है। ठीक है, ये अरबी का। और हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हरूफ मुक़त्ता से पढ़ते हैं, हा मीम कहेंगे हरूफ का नाम। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आगे हर्फ है, उसके आगे इसका नाम लिखा हुआ है, अलिफ बा ता लिखा हुआ है ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा लिखा हुआ है ना आगे। हिंदी में लिखा हुआ है, इसको हिंदी आती तो हिंदी में लिखा उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ उर्दू में लिखा हुआ है भाई। है हाँ, लालटेन नहीं लगी, कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, ये नाम हरूफ मुक़त्तात पढ़ने के लिए इन हरूफ का नाम पढ़ना क्या है, जरूरी है। ठीक है, काफ हा या ऐन स्वाद, हरूफ का नाम लेंगे, काफ है नहीं कहेंगे, हे मीम नहीं कहेंगे। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन हरूफ को सीखना है। ठीक है, बच्चों को सिखाइए। बाद में कहा कि मौलाना साहब को जरा सा पढ़ के भेज दिए, व्हाट्सएप कर दिए, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन स्वाद ضاد طا ظا عين غين فا قاف काफ लाम मीम नून वाव हा या। अलिफ क्या है, अलिफ अगर इसके ऊपर कोई हरकत नहीं तो हमजा है, कोई हरकत नहीं तो वो अलिफ है। यार इसको क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हरूफ पहचानेंगे। उसके बाद इसी पे देखिए नीचे क्या है, हरूफ की तहजीब की शक्लें। हमारे पास इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आधे हरूफ का इस्तेमाल नहीं होता, या क्या है, कैपिटल है या स्मॉल है। उर्दू अरबी में क्या है, उर्दू अरबी फारसी में आधे हरूफ का इस्तेमाल होता है। और यही सेकंड स्टेप है, जब आप किसी को पढ़ाएंगे तो ये सेकंड स्टेप जानना बहुत जरूरी है, क्यों, इसलिए कि आधे हरूफ का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ है, कुछ हरूफ हैं जो शुरू में आते हैं, अलिफ शुरू में ऐसे आएगा, आखिर में बीच में नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखिए बा है, बे ते से, बा ता सा की शक्ल एक ही जैसी है, शुरू में बीच में आखिर में। जीम हा खा की शक्ल एक ही जैसी है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। दाल जा, दाल और जाल बीच में आएगा, बीच में नहीं आएगा, शुरू आखिर में आएगा। तो ये जो सेकंड चार्ट है ये बहुत अहम है। अब क्या है, अब अगर बच्चा हरूफ पहचान ले, मसलन ये लिखा हुआ है, तो उसको अब बच्चा, ये कौन सा हर्फ है, जी देखिए पूरी शक्ल इसकी ऐसे है, लेकिन आदि के हो ऐसे है। देखिए ये कौन सा हर्फ है, ये आयन, ये आयन ऐसे होता है। बाद लोग इसको हे से इश्तबा करते हैं, इसको हे समझते हैं, जबकि हे की शक्ल कैसी है, हे की शक्ल ऐसी है। ठीक है, तो ये बीच के हरूफ को ये ऐसा है, मसलन ये क्या है, ये मीम है, ये क्या है, लाम है। ये हरूफ पहचानना, बीच के हरूफ, हम बाद में उसको अलिफ पढ़ लेते हैं। तो मतलब नुक्ते हैं, ये ता है, ये तो नीचे नुक्ता नीचे क्या हो गया, या हो जाएगा। बाद लोग या फरू तफरू गड़बड़ कहते हैं, ये फरू तफरू पढ़ते, तफरू ये फरू पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझना क्या है, ये जरूरी है। अगर ये नुक्ता तीन क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नुक्ता एक हो जाएगा क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। ये जो है वो पेज नंबर 3 का जो सेकंड स्टेप है, ये सब बेसिक, जिस दिन ये समझ में आ गया, अगर हर्फ आप पहचान गए तो फिर इतना आसान है। हम जब पढ़ाते हैं लोगों को तो कहते हैं हमारा फार्मूला क्या है, उस दिन बताया था, उस दिन आप लोग 3 क्लास में नहीं थे। फार्मूला कितनी देर का है, फार्मूला कुल 30 सेकंड का है। ठीक, और
باقی ہو رہا ہے آپ کی مرضی. اتنا آسان ہے. قرار یہ ہے کہ بچہ حرف پہچانتا ہے. یہ جو بھی پڑھنے والا ہے وہ حرف کو پہچانتا ہے. اگر حرف کو پہچانتا ہے تو کرنا کیا ہے, اس کو بتانا یہ ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر لگا کر اس کو ہم آ کی آواز پڑھیں گے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں, الف زبر آ. الف زبر آ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بے زبر با کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرنا ہے, صرف آ. ہاں کیا پڑھیں گے اس کو, ہاں پڑھیں گے. ہے زبر ہاں نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, ہاں. یہ کیا ہو گیا, سا. کیا ہو گیا, ہم نے پڑھیں گے ہاں سا. ہم ہماری جو غلطی ہوتی ہے, جو لیٹ ہوتا ہے, اسی لیے ہوتا ہے. پڑھاتے ہیں ہے زبر ہاں, سین زبر سا, دال زبر دا. بچہ کنفیوز ہوتا ہے. نہیں, پڑھو سیدھے ہاں سا. اب یہ پیج نمبر جو 4 ہے آپ کا, اگر ہر کوئی پہچانتا ہے تو پورا پیج خود پڑھ لے گا, آرام پڑھ لے گا. لیکن پڑھنے کی روش کیا ہے, روش پڑھنے کی اس کو کہتے ہیں بخش خوانی. کیا کہتے ہیں, بخش خوانی. بخش خوانی یعنی کیا ہے, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا. اور یہ بخش خوانی وہ طریقہ ہے کہ جس میں کبھی غلط نہیں ہو. کیسے پڑھیں گے, مثلا آپ کو پڑھنا آتا ہے, بعض اوقات لوگ تیز پڑھنے میں کیا کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. کیسے پڑھیں گے, جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں تو پڑھائیے. کیسے پڑھیں گے, ہاں سا دا. حسدا نہیں, ہاں سا دا, نا زا لا, وا سا قا, خا لا آ, سا آ لا. اگر آپ حرف پہچانتے ہیں تو اس روش میں اصلاً غلطی ناممکن ہے. ابھی پڑھیے, وا آ دا. مگر مولانا صاحب یہ اس کے اوپر سا آ لا جو ہے, اس کے ساتھ سین کے ساتھ الف بھی ہے. ہاں, جب بھی دیکھو الف کیا ہوتا ہے, یہ الف میں بتایا نہیں کہ اگر الف خالی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ الف ہے. اگر اس کے بعد کوئی حرکت ہے تو یہ آ ہے, حمزہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ سا آ حمزہ ہے. وہ حمزے کے لیے کیا ہے, الف کو اس کو کہتے ہیں فارسی میں کرسی. یہ الف حمزے کے لیے کرسی بنائی گئی ہے. تو اس کو سا الا نہیں پڑھتے, سا آ لا. اس میں اگر حمزہ اوپر نہیں ہے تو وہ آ نہیں ہے, وہ سا ہو جائے. نہیں, اگر دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, ایک ایسے ہے, دیکھیے سنیے, یہ کہ ایسے ہے سا آلا. اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا, سالا. یہ کیوں کہیں گے, الف ہے مدی کریں گے اس کو. یہ کیا ہوگا, یہ حمزہ ہو جائے گا. ہاں, اگر حمزہ آخر میں آ جائے, اس کے اوپر زبر آئے تو اس کو کیا ساؤنڈ دیں گے, جیسا مثلا دیکھیے جیسے تلفظ میں آخر میں آ جاتے ہیں. ہاں کیا پڑھیں گے, جا آ. ہاں, حمزہ کو آ پڑھیں گے, آ ای او. الف زبر آ کو بھی آ پڑھیں گے, حمزہ نہیں الف. ابھی اگلے اسٹیپ پہ آ گئی ہے. اچھا, ابھی کیا ہے, ہم اس کو جا آ, ٹھیک ہے. جب بھی حمزہ ہو تو ابھی آگے آئے گا کہ اگر حمزہ واو بھی ہے تو واو نہیں پڑھیں گے, یا بھی آخری پڑھیں گے, الف آخری پڑھیں گے. جب کسی پر حمزہ آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, سائلنٹ ہو جائے گا. ابھی لکھا ہے لیکن پڑھا جائے گا حمزہ, یہ آخر میں آئے گا. تو ایک فارمولہ کیا ہو گیا, اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہے تو کیا کریں گے, اس کو ہم آ کی آواز پڑھیں گے. یہ پیج نمبر 4 اتنا آپ نے بتا دیا. حرف پہچانتا ہے تو بچہ پورا پیج اپنے آرام سے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک, اگلا اسٹیپ پیج نمبر 5. اگر کسی حرف کے اوپر زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم, اس کو ہم اے نہیں ای کی آواز سے پڑھیں گے. ای ای آ ای, ٹھیک ہے. ہاں, جیسے کیا پڑھیں گے اس کو, ای. یہ کیا ہوگا, بی. یہ کیا ہو جائے گا, الف زیر ای, بے زیر بی کہنے کی ضرورت نہیں, سیدھا. جب آپ پڑھانے میں ایک دھیان رکھیے کہ جب آپ پڑھائیں تو آپ پورا ہاتھ کبھی دکھائیے. بچہ کیا کریں گے آپ, یہ پڑھیے ای, یہ روش ہے, یہ روش طریقہ ہے. ای بھی کیا پڑھیں گے, نا سی یا, ٹھیک ہے نا. کیسے پڑھیں گے, یہ آپ ابھی آپ کو کرنا ایسے ہی پڑھنا ہے, را ہی ما, الگ الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ملا کے نہیں پڑھنا ہے.
ये हो गया। अभी पेज नंबर 5, इसमें अलिफ और ज़बर और ज़ेर दोनों मिला के लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको पूरा पेज आराम से पढ़ लेंगे। हरूफ पहचानते हैं, आ और ई, ठीक। मतलब ये लिखा हुआ है सीन मीम ऐन सा और वो ज़ेर मिल गया ऐन इसमें, तो ऐसे मिल गया है, प्रिंट में ऐसा हो गया है। सा मी सा मी आ, ठीक, ये हो गया ई। अगले, अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? ऊ के आवाज पढ़ेंगे। ऊ क्या है? ऊ। हरूफ पहचानते हैं, मसलन पेज नंबर ये हो गया 6। सो बोला कैसे पढ़ेंगे? सो सु बु ला, ठीक है ना। फे कैसे पढ़ेंगे? सु बु फी। इससे आसान नहीं होता, इससे आसान तो पैसा वापस, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप पेज नंबर 6 देखिए, पेज नंबर 6, पेज को आप ऊ के आवाज से पढ़िए पूरा पेज। आप बोलो जो जीनियस है ना, वो तो हमसे आगे पढ़ते हैं, समझे आप, कि समझ में आ गया तो उसके ऐसे पढ़ो तो आगे पढ़ लेते हैं। तो अगर हरूफ पहचानते हैं तो आप पूरे पेज को, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? तरीका कभी नहीं, जैसे पढ़े न सा न सी मु जा उ फा कु ती ला। अलग इसको कहते हैं बख्श खानी। क्या करना? अलग बख्श करके अलग करके पढ़ना, ठीक, ये हो गया। जरा इसका फर्क बता दें, जैसे कि ये त सी लो हम पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, त सी लू लू त सी लू। मगर जब इस तरह वैसे देखते हैं, हम उसको पढ़ते हैं तो सी की जगह से कहते हैं, असल पढ़ रहे होते हैं, वो उर्दू लहजा है, वो उर्दू लहजा आ जाएगा, लेकिन असल क्या है? असल प्रोनाउंसिएशन अरबी की ई होगी। ऐसे देखिए, आ ई ऊ हाँ, हमने समीउ पढ़ हम क्या पढ़ते हैं? हम कहते हैं समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, हाँ समी अल्लाहु है, समी है, समी मीम इधर मी समी अल्लाहु, समी भाई अल्लाहु। कोई चेंज आना चाहिए अरबी। हाँ, अरबी का एक तरह से हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, हाँ वो लहजा उर्दू का है, ठीक है। मीम जेर हम अभी बताया ना, हम जेर को ए की आवाज से पढ़ते हैं, क्या है? जेर ई की आवाज से, फिर इसको ओ की आवाज से पढ़ते हैं, ये हिंदी और उर्दू लहजा है। ये करेक्शन, फिर इसको ऊ की आवाज से ये पढ़ना अपनी भी करेक्शन सही करनी और पड़ेगी। ये तो आपने तो उधर बताया था मैंने, लोगों ने इतराज कर दिया, अरे हमारे आबा अजदाद ए पढ़ते चले आए हैं, हाँ। बताया था आपको नहीं? जी जी। तो क्या कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। चलिए अगला फार्मूला, अभी तक क्या था? अगर किसी हर्फ के ऊपर जबर है तो क्या पढ़ते थे हम? आ पढ़ते थे। अगर जबर के साथ एक अलिफ आ जाए, क्या हो जाएगा? ये दो मतलब ये होगा आ हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इजी, ठीक। ये क्या है? ता। ये क्या हो जाएगा? ता। कैसे पढ़ेंगे? अभी हो कैसे पढ़ेंगे? ता बा नहीं, बा। अब दोनों फर्क होती है, ता बा, ठीक। कैसे पढ़ेंगे? ला। अब जोसन कबीर आप पढ़ लेंगे, यानी अगर चौथे दिन आप बच्चों पढ़ा लेंगे, चौथे दिन वो जोसन कबीर के या खालिक को या राज़िक को या बालिक को पढ़ लेगा आराम से। और रमजान में लोगों ने कहा कि अभी तो चौथे दिन हम लोग तो जोसन कबीर पढ़ लिया, खालिक को या मालिक को या राज़िक को पढ़ने आ गया। ये है कि सही तरीके से पढ़ाया जाए तो मुश्किल काम नहीं। अब देखिए पेज नंबर कितना हो? पेज नंबर 7, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? रा ना, अगर आ नहीं रा रा ना। अब क्या अलिफ कुछ नहीं है, ठीक है, आप अलिफ पढ़ा जाएगा, ये अलिफ है, मतलब अलग नहीं पढ़ा जाएगा। ना ये हमजा नहीं, ये अलिफ है। हाँ। क्या पढ़ेंगे? रा ना, ठीक है। मगर ना पे कोई चीज तो है नहीं ना, हाँ, नहीं है। कैसे पढ़ेंगे? ता बा। इससे आसान नहीं होगा। आप फार्मूला समझ लीजिए और पढ़ना आपको अपने आप पढ़ना जाएगा। और कुरान यही कुरान है। हमें जो लिखी मिसालें कुरान से बाहर नहीं है। हमारे जो नूरानी कायदा आता है और बगदादी कायदा आता है, उसमें बहुत से ऐसे अल्फाज जो कुरान में है ही नहीं, लेकिन बच्चों अब हाँ, तो ये जो है वो शॉर्ट कर दिया गया। तो अगर अलिफ साथ जबर आ जाए, जबर अलिफ क्या हो जाए? आ की आवाज से पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक और है, क्या है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, ये जबर और अलिफ, इसमें से क्या होता है, इसके बजाय हर के ऊपर खड़ा था, उसके कहते हैं खड़ा जबर,
इसको भी क्या पढ़ेंगे, इसको आ के बाद पढ़ेंगे। जैसे एक मिसाल लिखें, क्या पढ़ेंगे, म सा जी दो, जी जी क्या पढ़ेंगे, या मा नू। ओके, समझा ना? ये बिल्कुल ऐसी बहुत आसान है। मतलब ये हाँ एकदम नीचे से निकलता है नहीं वो तमीज की बात है। नीचे से पूछता जा हाँ हाँ हाँ, यहाँ से आखिरी वाले से। जैसे ना दो हाय ना ठीक, तो ये हो गया। साथ साथ में बता बातें सबको ना कोई नहीं है ना। अब अगर ये कैसे हमने, अगर किसी पे जेर से क्या पढ़ते थे हम, ई पढ़ते थे, ई। पेज नंबर 8 देखिए, अगर इस ई के साथ एक या आ जाए, क्या पढ़ेंगे इसको हम, ई पढ़ेंगे, डबल ई हो हाँ जाएगा। डबल ई हो जाएगा, ई पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? जैसे क्या पढ़ेंगे, ई बा दी, ठीक है? क्यों कहते हैं मद्दी, क्या हो गया ये, ई, ठीक है? हो, अब इसे लिखें, ऐसे पढ़ेंगे, सा ला दी, ठीक है? लेकिन वो ये को खींचेंगे नहीं ना, मतलब हाँ, ये क्या है, या दी मा। हमारे पास जो उर्दू वाला कुरान है ना, उसमें यहाँ पे लोग इस यहाँ पे एक साकिन बनाते हैं, लेकिन जो अब जो लेटेस्ट कुरान है इंटरनेशनल, उसमें इसको साकिन वाली जरूरत नहीं, कहते हैं जब या के पहले जेर है तो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसको जरूरत नहीं रहने देगी। इसलिए हमारे पास कुरान जो है उसमें बहुत कम, तो क्या पढ़ेंगे, या दी मा, ठीक है ना? कैसे पढ़ेंगे, मा सी रो, कितना आसान है, रू, मा सी रो, रू, हाँ, रू। मौलाना साहब ये सीन और स्वाद जरा सा फिर बता दें, ये कैसा नहीं निकला? सा, एक सा से बता देते सा, स्वाद जरा सा जवाब फिर है, स्वा, सा स्वा, सल्ले स्वाली, जबान जरा पीछे जाइए, सौ हो जाएगा। जबान के अलावा भी एक आसान तरीका है कि अपने मुंह को जो है ना गोल कर गोल करें, स्वाद पढ़ने के लिए। मुंह गोल करेंगे सीधा ना, रखें। जब मुंह गोल करें जबान अपने आप पीछे आ बोल जाएगी, दो स्वा सौ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो ये हो गया, ये होगा ना कि अगर या के बाद जेर तो उसको हम ई की आवाज से पढ़ेंगे। अगला फॉर्मूला आगे पूरा पढ़ा देना, अगर पेश के साथ क्या हो जाए, वाव आ जाए, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, ऊ की आवाज से पढ़ेंगे, खिंच जाए। ठीक है ना? ये क्या था, मुंह, क्या हो जाएगा, मुंह, ऐसे पढ़ेंगे, आ मुंह, ओके? बहुत थोड़ा सा खींच के, इसे पढ़ेंगे, सू लू री, ठीक है? कितना आसान है, सू दू। हम लोग आजकल तेज पढ़ने क्या करते हैं, इस कभी वाव को छोड़ देते हैं, कभी अलिफ छोड़ देते हैं, कभी या छोड़ देते हैं, नहीं, सू, जब आप बस नहीं करेंगे क्या पढ़ेंगे, सू दू री, कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है, बस खाने में इसको क्या करेंगे आवाज है, मसलन या कू नू, बू तू, पेज देखिए पेज नंबर 9, बू तू नी, कू लू बू। हम जब पढ़ाएंगे तो बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे, लोगों को इस तरह पढ़ाएंगे, कू लू बू, या कू लू, यू आ जू, फू सू का। कितना आसान है, ठीक है, मुश्किल है, कितना आसान है, और इसमें गलती नहीं होगी, फ यू ही या, ता उ मु, उ जी ना। एक चीज और याद रखिए, पेज के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, ये कायदे के खिलाफ है। कायदा क्या है, कायदा ये कि अगर वाव से पहले पेश हो ऊ क्या पढ़ेंगे, लेकिन 6 हुरूफ है यहाँ के ऊपर वाव है, उसके पहले पेश भी, लेकिन उसको हम वाव खींचेंगे नहीं, ये नीचे लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, देखिए एक है उली, यहाँ के ऊपर होना चाहिए, हम उली पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पे वाव शामिल है, क्या पढ़ेंगे, उलू, उली पढ़ेंगे, उली, उली, हाँ, या उलिल अलबाब, कैसे चलेगा,
यही है, ये देखियो ये सब बस यही अल्फाज ये हाँ ये ये याद सिर्फ रखना। वाव के लिए है नहीं मौलाना। नहीं सिर्फ इन अल्फाज ये आखिरी लाइन लिखा हुआ है, लास्ट लाइन देखिए, आखिरी लाइन सिर्फ ये हरूफ है, 6 हरूफ है, ये खिलाफ फायदा आउट ऑफ रूल्स है ये। हाँ आउट ऑफ रूल है सिर्फ ये 6 हाँ अल्फाज सिर्फ या और ये उलू क्या पढ़ते हैं उसको, बोलते हैं उलू, ठीक है ना, वाव को नहीं बोलते उलू, उलाए उलाते उलाए का सऊरी हो, बस ये 5 हरूफ हैं जिनको हम क्या करते हैं यहाँ के ऊपर कायदे के खिलाफ पढ़ा उसको एक जाता है। कायदा पता नहीं है वो हाँ, उलाए का गलत पढ़ता है, गलत पढ़ता है, वो गलत पढ़ता है, ये कायदा बताया जाना चाहिए, ठीक। सही। ये हो गया पहले 5 तो उलाइका पे ही उली पे ही है मौलाना। उली उलू उलाए उलाते उलाए अच्छा, का ये भी एक कायदा बन सकता है कि बहुत नाम है काफी में आ रहा है, उली में भी, उलू में भी, ओला में भी। लाम आ रहे हैं, कहीं पेश है कहीं जबर है, हाँ, कहीं लेकिन बड़ा लाम जबर के है, साथ है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, इसके अलावा कोई हर्फ नहीं है, ठीक यही सही है, इसके अलावा अगर होते तो कायदा बनता था, ठीक। जब ये मखसूस है हर्फ तो फिर कायदा बनाने की जरूरत नहीं। एक्सेप्शन है, ठीक। चलिए ये देखिए अभी एक लाइन पूरा समझ जाएगा। इस तरह पढ़ने से बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि जो उर्दू स्टाइल में तलफ़ुज़ हम लोग का आम तौर पर कुरान है वो वो करेक्ट होगा। चेंज करेक्ट होगा, ठीक है, यही है बख्शाने का फायदा, यही है क्या आप एक लफ्ज वाला पढ़ रहे हो ना, वादे करके पढ़ रहे हो। हाँ, उर्दू वाला तलफ़ुज़ नहीं आएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या बात है, बात औकात क्या होता है किसी हर्फ के ऊपर ना ज़बर ना ज़ेर ना पेश है, क्या है, एक छोटा सा दाल बनी हुई है, इसको कहते हैं उर्दू में जज़म या साकिन। इसका फार्मूला है कि इसको आप अकेले नहीं पढ़ सकते हो, इसको हमेशा पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। मसलन इसको आप नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो क्या होगा, अब, ठीक है ना। इसको आप नहीं पढ़ सकते, मिलान क्या हो जाएगा, मेन, ठीक है ना। आप इसको अलग नहीं पढ़ सकते, जब मिलान क्या पढ़ेंगे, ओके। तो साकिन का फार्मूला ये है कि जिस हर्फ पे साकिन उसको पिछले वाले हर्फ से। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से आपको आगे देख के चलना होगा। अभी तक क्या था, अभी तक था कि आप अब आगे अगर साकिन तो मिलाना है, बस कैसे पढ़ाएंगे, लन इज कम ओम हल जुक होम कुन लम, हाँ ये गलत हो गया, लम या लिद, ये आना चाहिए, लम। और कहीं भी आप पूरे कुरान में कहीं फंसिए, अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा आपका, लम या लिद मिन का अन तुम कुन अब ला अब सिर तक जी ई लई का सुब हा नम आ हद आह ज़रत यम सस नी कई द होम या गु दू न अस वा ता कुम यल ता इत हो तन की सु न स ब कत ल कुन तु फ सौ फ इन द का अन जिल फिर औ न अक रह द न। कितना भी न पढ़ने वाला हो आप गारंटी पढ़ने जान जाएगा, बस हुरूफ को क्या नहीं पढ़े बस, ठीक है। मानो ये बुक पे जब पढ़ाते हैं तो कैमरे पे जगह लगा दीजिए, फिर इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई वर्ड अरे वो तो रिकॉर्डिंग प्रोफेसर जो लिखने में उतना ही करके वो तो ठीक है। वो ये आइन की आवाज जरा बताएं। आइन, हाँ आइन आइन आपके दरमियान से क्या आइन पानी में बोले आ करिए, वो आइन क्या है, नअबुदु नस्तईन अनअमता अलैहिम आलमीन। वो देखो ताल 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 वो तो आइन खड़ा निकलता और वो है। दा भी जरा बता देंगे क्या? दाल और दो ज़वात अभी बताता हूँ, इसको पूरा कर लें। तो ये हो गया क्या साकिन, कि साकिन क्या करेंगे, साकिन को पिछले वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अगले वाला मसला ज़्यादा मुश्किल है। अगर किसी हर्फ के ऊपर ऐसा बना हुआ है त्रिशूल, हम लोगों को तो फिर नहीं पता। हाँ, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो हर्फ है,
जिस हर्फ पे ये फार्मूला क्या है, जिस हर्फ पे ऐसा बना उसको 2 बार पढ़ना है, बस याद रखिए। जैसे मसलन क्या है, फसम्मा, ये क्या है, रब, रब, ये क्या है, बी इसको खत्म करके क्या है ना, ये क्या, ये बता रहा है यहाँ पे कर पहले से अच्छा एक्सप्रेशन। क्या होगा, रब बी, ठीक, क्या है ये, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, हा, ठीक है ना, ये क्या है, ली, क्या पढ़ेंगे इसको हम, तो जब आप बस शादी करेंगे ना तो अपने आप आ जाएगा, सल ली, हा, रब बी, फा, पढ़िए देखिए पेज नंबर 11, फा सम मा, आई यू हा, रब बा का, जा हन ना मा, फस सल ना, इन ना कुम, ता तब बल, इन ना का, मा नन ना, आ लई या, आई या ना, फा हम मा, ई या हु, ई या का, रब बा ना, आ शद्दु, रब बा या नी। देखिए तो ये कितना आसान हो गया। अच्छा ये भी देखिए, नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6, 7वीं लाइन, 7वीं लाइन, यहाँ पे क्या है, यहाँ के ऊपर 7वीं 8वीं लाइन में 2 तस्दीद इकट्ठा हो गई है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। असल 8वीं लाइन में इस तरह लिखा हो, यस, तो कैसे पढ़ेंगे, इसको बश करेंगे ऐसा, यस सा आ दू, यस, ये इसका बश है, यस सा आ दू यस, अदु, इतना आसान है, यस सा आ दू, हर हर्फ यस सा आ दू ठीक है। इसी तरह से मुज जम, ये भी देखिए इस पेज नंबर लाइन नंबर आप देखिए 7 देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन, ला नहीं, ला उ सल ली बन न कुम, वा मिन जुर री या ती, यस सा आ दू, मुद दस सी रू, यश श ता उ, मुज जम मी लू, यज जद का रू, या गुर रन ना। तो यहाँ पे बाज़ फंस जाता है, आप बश करोगे अपने आप सही हो जाएगा, बश खाने में अपने आप आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि आपको जिस हर तस्वीर को 2 बार पढ़ना है, अपने आप सही हो जाएगा, ठीक, ये फार्मूला हो गया। अगर किसी हर्फ पर तस्वीर को क्या करेंगे, हम उसको 2 मरतबा पढ़ेंगे, ठीक। और मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है तू कज़िबूना, तू कज़िबूना, चले यहाँ तो ये सिखाने के लिए आपने लिखा है ना, ये तुकज़िबू नून के ऊपर फत्ता है, राइट। हाँ वो मसला नहीं, अगर ये आयत के एंड में आता है वो तो नून वो तो कज़िबान वो तो वफ है, उसको वफ कहते हैं। खूब, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक अगर आप आ गए तो अब यहाँ से गारंटी, आप कुरान की बहुत सी आयतों को अपने आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कुरान की बहुत सी आयतों को आप क्या कर सकते हैं, लेकिन रविश ये होनी चाहिए, रविश ए फ बे आई ये आ ला ए रब बी कु मा तू कज जी बा नी, इस तरह पढ़ेंगे तो असल में नहीं होगा। ये क्या है, अब ज़्यादा नहीं वैसा है, अगर किसी हर्फ के पास ज़बान था क्या पढ़ते थे हम, अगर ये ज़बर 2 हो जाए क्या पढ़ेंगे इसको हम, अन, एक प्लस नून की आवाज लगाएंगे, आन की आवाज से पढ़ेंगे। इस अन में क्या है, मसला ये है कि इस 2 ज़बर के लिए अलिफ की जरूरत है, क्या है, वैसा अलिफ रहता है, लेकिन अगर आखिर में या है या आखिर में बोलते हैं तो अलिफ नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे क्या पढ़ेंगे,
किताबन, यहाँ पे अलिफ है, ठीक है ना। इसे पढ़ेंगे अफ़वाजन, लेकिन कैसे पढ़ेंगे रहमतन, यहाँ पे अलिफ के आगे की जरूरत क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 12, ठीक। ये आसान है, हम जब यहाँ आते हैं ना, हम जब ये पढ़ाते हैं तो बच्चे इन उन सब पढ़ लेते हैं, समझे, उनके आसान लगता है। ठीक है, तनवीन, ठीक है। अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश से क्या करते हैं उसको हम ऊ क्या बोलते हैं, अगर दो पेश हो जाए क्या पढ़ेंगे उसको हम उन की आवाज से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक पेश आपने उल्टा लगाया है। हाँ, वो तरीका होने कैसी है। आप जो नया कुरान है, इंटरनेशनल कुरान है, उसमें बार जगह ऐसा लगता है, ठीक है ना। हो क्या पढ़ेंगे, किताबुन, ठीक है ना। दो तीसरा भी तो आते हैं। नहीं, इसने एक मिनट, इसने जो है पहले इन पढ़ाया है, उसकी तरह, ठीक है, सॉरी। इन वाला हाँ, ये अलिफ और ज़ेर है ना, अगर ज़ेर है तो क्या पढ़ेंगे इसको हम इन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर डबल है हाँ डबल है तो क्या पढ़ेंगे, किताबिन, ठीक है। बस दो जेर लगा दीजिए ऊपर। हाँ, यहाँ पे, थैंक यू। कैसे पढ़ेंगे, जी हाँ दिन, कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद कैसे पढ़ेंगे, अगर दो देर हो गए क्या हो गया, एक नून की आवाज से पढ़ेंगे। ये जो नून है एक बात बहुत काम आएगा, ये नून जो है वो बाद में जब तेज पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। कहीं ये नून निकल के बाहर आता है, कहीं ये नून जो है वो निकल के बाहर आता है। वो जो लिखा होता है ना नून, ठीक है, हम जाते नील जो होता है ये नून होता है ये वही नून होता है, ठीक है। अगर किसी आपके ऊपर दो पेश है, क्या पढ़ेंगे उसको हम उन की आवाज से, कितना आसान, क्या हो गया, बोन, कैसे पढ़ेंगे, किताबुन, ठीक है। किताब बताओगे हमारी, क्रैश कोर्स, जी हाँ। कैसे पढ़ेंगे, फालून, ठीक है ना। कैसे पढ़ेंगे, शाबुन, ये आसान हो गया। देखिए अभी एक लाइन में क्या पूरा फार्मूला हमारा तकरीबन खत्म हो गया। अब आखिर में क्या बचता है, इतना आपने पढ़ लिया ना, अब आखिर में बचता है कुछ हरूफ ऐसे हैं कि जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं, साइलेंट हर जबान में होते हैं, ठीक है। अब हमारे दो पेज क्या है, ये हरूफ कहते हैं नाखाना, तो कितने हैं, अलिफ लाम वाव और ये, बस एक पूरा कुरान यही है, मगर भाई इतना ही पूरा कुरान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक लाइन में पूरे कुरान को पढ़ाने का फार्मूला हमारे पास है, माशाल्लाह, ठीक। अब क्या है, अब देखिए वाव, अगर वाव पे हमजा है तो वाव को नहीं पढ़ा जाएंगे। क्या बोला साहब, फिर बोलिए। अगर वाव पे हमजा है तो वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे क्या पढ़ेंगे, माँ ऊ हा, क्या पढ़ेंगे, माँ ऊ हा, वाव को नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फू आ दू, वाव को जब भी पूरे कुरान में जब भी वाव पे हमजा आ जाए तो वाव साइलेंट है, वाव को नहीं पढ़ेंगे। वाव से पहले अगर खड़ा जबान आ जाए तो वाव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्या पढ़ेंगे, सा ला तू, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। या क्या पढ़ेंगे, ये तो अक्सर आता है, हमारे सामने आता है, ठीक। आखिर ज़कात में भी लिखा होता है। तो ये फार्मूला है, अगर वाव पे हमजा है तो वाव नहीं पढ़ेंगे, वाव से पहले खड़ा ज़बान है तो वाव को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक। वाव से पहले खड़ा जबर, वाव से पहले, वाव से पर उसके वाव खींचे वाव के जाएंगे, ऊपर, हाँ वाव से पहले। पहले देखिए यहाँ पे मिसाल लिखी है, वो लाम के ऊपर है ना, वो लाम, अच्छा सही है, सा लाम, लाम पे है, वाव से पहले आया, हाँ वाव से पहले है, वाव पे नहीं। तो ये हो गया। और यही फार्मूला क्या के लिए, ये फार्मूला है या के लिए भी। एक फार्मूला पढ़ के अगर
यहाँ पे हमजा है तो या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे क्या पढ़ेंगे, कु री आ, ठीक है। या क्या पढ़ेंगे, बा री उ, उ, या को नहीं पढ़ा जाएगा। तो जब भी या पे हमजा हो जाए तो या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक। इधर से अगर या से पहले खड़ा जबर है तो या को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तो आसान है, जैसे क्या पढ़ेंगे, मु सा, ठीक। क्या पढ़ेंगे, ई सा, या। तो जब भी वाव या से पहले खड़ा जबर हो तो उसको नहीं पढ़ेंगे। एक चीज, इस रूल को क्या कुछ कहते हैं, इस रूल को क्या, इस रूल का कोई नाम? इसको कहते हैं ना खाना, यानी नहीं पढ़े जाना, साइलेंट, इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट। कभी कभी या से पहले या पे दो जबर होता है तो या नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैसे क्या पढ़ेंगे, हु डन, ठीक है ना। या टू वन, ठीक, ये हो गया। अब और लिखा जाता तो पढ़ा क्यों नहीं आता, हर जबान में से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉलेज के जो है वो के साइलेंट होता है, ब्रिज में डी साइलेंट होता ही नहीं हो। जैसे अभी भी है 2-1 है ना, तो ये दो इसको वाव के ऊपर आएगा या को या आएगा, ये नहीं, आएगा के ऊपर नहीं पढ़ा जाएगा, अभी यहाँ इधर पढ़ाएगा वन एक वन। मिनट मौला मिटाइएगा नहीं, एक सवाल है सर, सातवें इमाम का नाम बताइएगा। सवाल आप सवाल है, सवाल। मूसा, मूसा, नहीं मैंने आपको भी पढ़ा सुना उस दिन यहाँ मिंबर पे, और कई मौलवी ऐसा मूसिया काजिम या मूसिये मूसिया काजिम, ओ ये सुनिए सुनिए, मूसिया काजिम फारसी में इजाफे साथ है, जैसे फातिमा ज़हरा। हमारे बचपन का हाँ, देखिए। स्कूल में टीचर थे, वो कहते पागल के बच्चे किसने सिखाया तुम्हें मूसिया काजिम? नहीं, ऐसा नहीं। हम रब जब का लाओ। नहीं सुनिए, हम जब उसको फारसी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे तो मूसिया काजिम इजाफा लगाएंगे ना, अरबी मूसा काजिम, वैसे है तो मूसा काजिम लफ्ज़। अरबी मूसा काजिम है, लेकिन हम जब उसको उर्दू फारसी बोलेंगे तो मूसिया काजिम बोलेंगे, ऐसा है। तो वो फारसी से आया मौलाना साहब, मूसी है, मूसिया हाँ फारसी से है, फारसी और अरबी में नहीं है, अरबी मूसी है नहीं, अरबी मूसा है। मूसा काजिम। हाँ, फारसी और उर्दू में मूसिया असल काजिम। में मौला का नाम वो- मूसा काजिम हाँ, अलैहि। मूसा काजिम। वो जब इजाफत करते हैं ना, इजाफत तो वो मिलाने के हाँ, लिए। ये हो गया। और काजिम को जब मिलाएंगे ये मौलाना साहब जो जालीन बोलते हैं, ये जालीन सही है या दालीन? अभी रुकिए, वो आना है, अभी अभी ये किताब तो हो जाएगा ना। अभी किताब तो ये हो गया और ये। हो जाए पहले। अब क्या बचा, बचा अलिफ और लाम। अलिफ लाम का फार्मूला बहुत आसान है। कहते हैं कोई चीज में अलिफ अलिफ लाम लगा दो अरबी हो जाता है, ठीक है ना। अलिफ लाम का फार्मूला कितना आसान है भैया। अलिफ लाम में अगर लाम पे साकिन है, ठीक है, तो मिलाने की सूरत में अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वल मा री, ठीक है ना, मिलाएंगे तो। लेकिन अगर नहीं मिलाएंगे क्या पढ़ेंगे, अल, जैसे अल हम दू, मिलाकर क्या पढ़ेंगे, ये आसान है। कि अगर किसी क्या कहते हैं अलिफ लाम है और क्या कहते हैं लाम पे साकिन है तो अलिफ नहीं पढ़ेंगे, लाम पढ़ेंगे। लेकिन अगला फार्मूला क्या है, मौलाना यहाँ पे रुके मौलाना जी बहुत से ये अपने जो अरबी कुरान होती है ना, इसमें अलिफ हर जगह लगा रहता है, इसको ना डबल होती है ना डेढ़ होती है, तो उसको कैसा कभी का आप पढ़ते कहीं ई पूछते बता दो उसको। अगला फार्मूला है कि अगर अलिफ लाम है और इसके बाद तशदीद है, ठीक है, तो मिलाने की सूरत में अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएगा। अगर लाम और तशदीद है तो मिलाने की सूरत में अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे वश शम सी, मिलाया तो अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ा गया, और नहीं मिलाया तो क्या होगा, अशम। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ यहाँ सिर्फ लाम साइलेंट हो जाएगा, वहाँ दोनों साइलेंट हो हाँ वहाँ दो जो यहाँ पे नाम पे वो बनाया ना साकिन बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, मिलाने में दोनों का है। बाज़ औक़ात क्या, बाज़ औक़ात एक अलिफ है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे
क्या पढ़ेंगे इसको? लालू। इसे लिखो नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं बना हुआ है। जैसे क्या है? वन, ये अपना अलिफ नहीं पढ़ा जाए। वाव को भी नहीं पढ़े ना ऊपर कालू में, वाव अलिफ दोनों नहीं पढ़े। नहीं लू है ना, वहाँ पे लू कालू लाम लू है ना, वाव मद्दी है भाई, वाव पास वाव सागिर से पहले पेश ऊ पढ़ेंगे ना। मद्दी है, हाँ, पेश लू, मद्दी है। अभी पढ़ा ना हमने, यहाँ पढ़ा ना, वाव से पहले पेश तो क्या करेंगे उसको? ऊ कहेंगे। हाँ, लू। डबल है। इसकी ये वाला रूल दोबारा बता दे, अलिफ और लाम वाले रूल दोबारा बता। अच्छा, अलिफ लाम, उसका रूल क्या है? अगर अलिफ लाम का तस्दीद है, ठीक है, तो मिलाने की सूरत में अलिफ लाम दोनों नहीं पढ़ेंगे। जैसे वशम्स, नहीं पढ़े तो वाव पढ़ेगा, तो मिलाया, ठीक है ना। और अगर अलिफ लाम के बाद अलिफ लाम में लाम पे साकिन है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो मिलाने की सूरत में सिर्फ अलिफ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वल कमरी पढ़ेंगे, बस हो गया। ठीक है ना? चीज है तो दोनों नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। नहीं उसको कम रे कैसे पढ़ेंगे, वरना री पढ़ेंगे। रे कमरी पढ़ेंगे। हाँ। ठीक है, ये हो गया पूरा हमारा फॉलो। ये जो 15 दिन में आप किसी को कुरान कहाँ से मिलेगी ये बात? हैं? ये कहाँ से मिलेगी? बुक हम- मेरे ख्याल पीडीएफ आप भेज दें ये ले लीजिएगा, ये मेरे पास अभी ये है, ये ले लीजिएगा मेरे पास। ये ले लें अपना। इसका हदिया आपको। अरे हदिया कुछ नहीं इसका। अरे नहीं। अरे नहीं सर, लेकिन मैं सबका जो होगा पीडीएफ एक बेटे भेज दूंगा। 50 दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए कितना आसान है कुरान पढ़ना। अब यहाँ से क्या करना है? यहाँ से एक चीज याद रखना है कि हमेशा आपको कैसे पढ़ना है। हमेशा आपको देखिए इसमें क्या है, इसमें आखिर में कुछ सूर्य लिखे हुए हैं, लास्ट में देखिए सूर्य लिखे हुए हैं, लास्ट पे निकालो। ये लास्ट पेज है। ठीक है ना। अभी आप देखिए बख्शानी, गत्ते में बख्शानी के 2 स्टेप हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए आप। बख्शानी के 2-3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको वर्ड वर्ड पढ़ना है। अब देखिए बिस्मिल्लाह हिर रहमानिर रहीम अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी। आप पूरा कुरान ऐसे पढ़ लिए, कोई गलती निकाल दो पैसा वापस, गलती निकालने कोई चांस ही नहीं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये बिल्कुल फिदा है। फिर एक मिनट, सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि, जैसे वो किताब दिलाए थे, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये क्या होगा? ऐसे थर्ड स्टेप में फिर अब जो है वो ज़्यादा वाइज पढ़ सकते हैं आप, लेकिन रविश जब ये रहेगी तो आप इसे करना आपसे नहीं होगा। और इधर जैसा लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हे नहीं ही है। एक मिनट में सवाल क्या है? उसको ऊपर जो आलमीन है उसको आलमीन पढ़ा है, तो ये ला का क्या है उसमें, और ये जो तोए है इसका जरा समझा दें। हाँ, ये क्या है? इसका ताल्लुक है वक्फ से। जब इंसान कहानी पढ़ता है तो अभी मैंने बताया ना कि हमारे पास चूंकि हमको अरबी नहीं आती, ठीक है, तो कहाँ रुकना क्या रुकना है? रोको मत जाने दो में क्या है? हमको रोको मत जाने दो कि रोको मत जाने दो। चूंकि हमको अरबी आती, इसलिए क्या किया उलमा ने, क्या किया, कुछ सीक्रेट्स बनाए हैं, रम्स बनाए, उसके अंदर रमूज औकाफ बताए हैं। उसमें क्या होना हमको, वो सबसे अहम ये है कि सबसे उसमें अहम ये है, एक है लाम लामदी और एक है मीम। लाम मतलब ला तक़िब, ना ठहरना नहीं है। मीम मतलब क्या? वक्फ लाजिम है। लेकिन कहाँ? जब आप आयत पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं, अगर आयत के ऊपर है तो नो टेंशन, अगर आयत के बीच में है तो आपको वहाँ ठहरना नहीं है। ठीक है, अगर आप आयत पढ़ रहे हो, आयत के ऊपर मीम आ गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आयत के बीच में मीम है तो वहाँ पे ठहरना जरूरी है। अब कहीं तो लिखा होता है वक्फ मुतलक की अलामत है, जी वक्फ जायज़ की अलामत है, सॉरी यूसर की अलामत है, वो सब अलग तबीरत है। दोनों ये लाम और मीम अहम है। ये क्या है? ये आयत के बीच में हो तब वहाँ आप नहीं हो सकते, रुकेगा तो हमारे गलत जाएंगे। आयत के ऊपर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहे रुकिए चाहे रुकिए। और मीम में रुकना लाजिम है। मीम लाजिम है, अगर बीच में है तो। लायक
बीच में आयत बीच में और आयत के एंड में तो कोई हाँ, वो उनकी मिसाल आयत ऊपर है। एक लफ्ज का आप तशरीह कर दें हमारे, जिस अब- तरह किस लफ्ज का आप तशरीह कर दें, आयत ढूंढनी पड़ेगी वो कोई भी लफ्ज मतलब का किसी सूरह- हमें अरे पता मोहम्मद नहीं। का ले लीजिए मौलाना, इसके बाद बस- इस्लाम के पहले नींद है, इसके बाद नहीं वो दूसरी चीज है, किसी को दूसरी चीज है। मतलब सूरह यासीन में है, सूरह यासीन के एंड से पहले। सूरह यासीन के आखिरी आयतों में देखिए है क्या है, कहाँ पे है? नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं वो बताता हूँ मैं। देखिए ये आयत नंबर 75, ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम ला, यहाँ पे नस्रहुम, वहाँ पे लाम लाम लामरी बना हुआ है, वहाँ पे नहीं कह सकते। ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, वहाँ पे। और इसकी आगे एक आयत और है, एक आयत वहाँ की, इसी में एक आयत दूसरी है, आयत नंबर हसीमुम मुबीन। हाँ नहीं नहीं ये आगे है ये, हाँ आयत नंबर 76 में फला याजुन का कौलहुम, वहाँ पे मीम बना हुआ है बीच में, वहाँ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे होना जरूरी है। कौलहुम आयत नंबर 76, मस्त है। हाँ इन्ना नअलमु मा युफसिरून मा युरिनून, ठीक है ना, अगर आपके साथ में साइड में लिखा भी वक्फे लाजिम। हाँ वो फर्ज लिखा होता लिखा है, हुआ था। ठीक है ना। तो ये है, ये कुरान है, मुश्किल नहीं है। हमने क्या है मुश्किल बना रखा है, पता नहीं। अगर हम चाहें थोड़ा सा पढ़ने का शौक हो तो ये चीजें मुश्किल नहीं है, ठीक है। मौलाना साहब आखिरी वो सीन सौद हाँ और वो दाद, ये सूरह हुमज़ा का लाम वाला बता दें, लाम के पहले नींद है, नून है, और रुकना है तो कैसे पढ़ना है? ठीक है, ठीक है। सूरह हुमज़ा 104। एक देखिए या हम तो बोलिए कुल हुवल्लाहु नींद आ रही है, समझ आ रहा है। अहदुन, ये लिखा हुआ है, क्या बोल पढ़ दो ना, ठीक है। अल्लाहुस समदु, खूब, ये क्या है, हम क्या पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। लेकिन अगर आप इसको मिला क्या पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद निल्लाहु समद पढ़ेंगे, ये उन क्या हो जाएगा, इन्होंने नहीं जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद निल्लाहु समद, जो उन था ना उन उन यहाँ गए, ठीक। तो कहते हैं बेहतर यही है कि अहद पे रुका जाए। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, जो हाँ अब चूंकि सामने भी मिसाल है, सही, तो सही, अगर हम मिलाएंगे तो अहदो निल्लाहु समद पढ़ेंगे, ठीक। सीन और साद देखिए, एक लफ्ज है आसा, ऑर्डर हो गया ठीक। आ रहा है। ये क्या है, ये सीन आ सा, हम जो सिंपल रहता है सा, ठीक है। ये क्या है, ये स्वाद आ स्वा, ऐसा आ स्वा, ठीक है ना। एक लफ्ज क्या है, सल्ली, एक लफ्ज क्या है, ये जानेंगे, ये सल्ली, ये क्या है, सल्ली, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली, सदक अल्लाह, क्या बोलते हैं, सदक अल्लाह। जबान को जरा भी गिरे हो जाएगा, सीन साद हो जाएगा, ठीक। वो तजवीद किताब है जो मैंने उसमें इस तफसीर इसकी लिखी हुई है। एक वीडियो भी अगर इसे ग्रुप जो बनाया ना आप लोगों ने, आपको फॉरवर्ड करूँ। मैं एक वेब दूंगा AI हमने कल आपको एक वीडियो मैंने आपको मैं एक वीडियो शेयर की, उसी चैनल पे वो पूरा है, वो मुझे वो एक वीडियो मैंने भेज दिया, कभी से आप ढूंढ लीजिए। अच्छा उस चैनल पे ये पूरी क्लास हमारी रिकॉर्ड हुई अच्छा, है, रिकॉर्ड हुई है। हाँ उसी चैनल पे है। ये तजवीद की है, दो वास्ते, एक थी ये पढ़ने की, एक तजवीद की। तो तजवीद में मिल गई तो मैं उस चैनल में मिल गया तो उसे मिल जाएगी, ठीक है। एक है ज़वाद, ज़वाद क्या है, ज़वाद ज़बान को किनारे से लगाइए, पीछे ले गए, दो डायरेक्ट दाल कहना गलत है, दो क्या, दो दाल ली, ये हमको मुश्किल होती है बस, दालिन, ज़बान को किनारे ये और ज़्यादा पड़ गया, दो, इसको सिर्फ थोड़ा सीखने की जरूरत है। दो वल अर्दी रमज़ान, क्या पढ़ेंगे, रमज़ान, So ये ज़ाद is दा is दा दालीन है, ज़ालीन सीधा दा नहीं है, ज़बान को किनारे लेकर वहां से दा, दालिन, हाँ दो, गैर मग़दूबी, मग़दूबी क्या पढ़ेंगे, मीम गैन दाल, मग़दूबी। आप जब अरबों के देखेंगे, अरबों
इसको कैसे बोलते हैं? दा, रमदान, Ramadan. रमदान, Yes. ठीक है ना? अलिफ ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हाँ, इसमें क्या फर्क है? तो अलिफ अलिफ और आ होता ही नहीं है। अलिफ अलिफ में कुछ होते ही नहीं है। देखिए अलिफ खुद आए ये अलिफ है, ये अलिफ है, कुछ भी नहीं है, नहीं, अगर इस पे ज़बर लगा हो तो वो हमजा हो जाएगा। आ, अलिफ पे कुछ और लगा दी वो हमजा हो जाएगा। आ ई उ ए हमजा हो जाएगा, आ, ठीक है ना? अलिफ पे कुछ भी लगा तो हमजा है, अलिफ नहीं। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्या है देखिए, ये अलिफ है, काल, ये क्या है? ये अलिफ है, कह तो रहा था ठीक है? मतलब है जैसे टीचर है क्या पढ़ेंगे? वहाँ बापी के ब आ स। इसमें ये तो अगर हरकत आ गई तो हो जाएगा वो हमजा हो जाएगा, अगर हरकत नहीं तो अलिफ है, ठीक? हमने सीखा है कैलीग्राफी, किताब मेरे को आती है, हमने 10-15 किताबत की है और मतलब ये हमज़ा वाला दोबारा बोल रहे, हमज़ा वो दुआत वाला कैसे पढ़ना है? तो जबान को किनारे जाएगी, हरकत ऊपर लेगा, तो वो मग़दूबी, स्वाद की तरह नहीं पढ़ना है। स्वाद को सिर्फ पीछे रहना है, स्वाद में जबान से पीछे रहना है, सौ, और जबान में जबान को किनारे ले जाना है, दो, सौ, दो, ठीक है? जबान के कोने को साइड में लगा लो हाँ, और फिर दो, बोलो हाँ। अब वो क्या उसमें बोला मुंह टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए शायद टेढ़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो तो आदी हो जाओगे ना। हाँ, जब याद हो जाएगा तो फिर दौली, अब अपन अगर मकतूब या अलैहिम वलद्दालिन वो क्या हुआ? और लफ्ज़ सूरह में आता है ज़बान को पढ़ना, ठीक है? क्या हुआ थी माशाल्लाह। सलवार में पैदा बोला